Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for a Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the 6th chapter and we have completed 6.35. So before we go ahead with 6.36, let's have a fast recap. Yes, what did we discuss last week? We discussed about वैराग्य, which was like भोगने के लिए अगर वैराग्य प्रैक्टिस करते हैं तो पीस नहीं मिलेगी. Yes. And नॉलेज से जो वैराग्य प्रैक्टिस करेंगे तो ही पीस मिलेगी. And you made us understand the Many meaning of people take to Vairagya or detachment just because I will enjoy later. I will enjoy later. So that I will बाद में 4 दिन बाद में enjoy कर सकूं. Whereas those who are in ज्ञान, in knowledge, they will say नहीं, इस धरती पे enjoyment है ही नहीं. Whatever it is चपल सुखा. What is चपल सुखा? Just एक क्षण भर के लिए. It's like the flickering of a candle. बस उतना ही है आनंद, उससे ज्यादा आनंद नहीं. हाँ. Then what else did we discuss? You made us understand the meaning of vairagya, which is not only detachment but विशेष राग for the Lord. हम लोग अक्सर वैराग्य को एक ही भाषा में समझते हैं कि हमको भौतिक चीजों से दूर होना. We have to detach ourselves, which is not possible. How can you detach from the world? नहीं, first and foremost, what is the need for you to detach from the world? As long as you are in this body, you have to need this world. You are having this body, खाना पड़ेगा. You cannot say, no, I will not eat food. You cannot say, I cannot wear clothes. I don't not drink water. These are all our basic needs which cannot be avoided. And then, if we are trying to attach ourselves to these things, then we are forgetting the requirement of the soul. आत्मा का जो जरूरत है वो हम भूल रहे हैं, उसको हम साइड में रख रहे हैं और वो वहां मरमला गड़बड़ा है. So attachment to worldly things is to be kept at bay, but not to be totally detached. It is not possible. Even a sadhu eats fruits. Even a sadhu eats some food. It's not that a sadhu has become a sadhu, he will stop eating food. No, it's not like that. So, the best vairagya is attaching yourself to God. And then I told a very important point, which evaporates very fast. And that point was, actually let me see if Anjana Mataji remembers it. You remember? I know, it evaporates very fast. Let me see who else remembers that. Okay, something which is inversely proportional. वो याद आएगा. Focused mind and The more you get attached towards God, more you get detached to the worldly things. जैसे तराजू में आप एक पल्ले में डाल दिया तो दूसरा पल्ला ऊपर जाता है. Correct? You put in a weighing scale. तराजू में यहाँ सब्जी डाले, यहाँ वजन डाला तो सब्जी यहाँ ज्यादा हो जाता है, यहाँ गिर जाता है. अगर कम है तो झुकाव इस तरफ होता है. सिमिलरली आपका अगर झुकाव भौतिक चीजों पे ज्यादा है, पल्ले पे आप रख लो अपने आप को, keep it on the balance and see where you stand. Oh, my attachment to worldly things are more, भारी है, यानी कि my attachment towards God is less. ये पल्ला हल्का है और ये पल्ला भारी है. और वाइस वर्सा, जैसे जैसे आपका भगवान के प्रति प्रेम, आपकी भक्ति, आपका निष्ठा भगवान के प्रति, भगवान को पाने का जो चाह है, your desire to acquire God will be more and more, then this will become heavier and automatically your weight, your relevance to worldly things, भौतिक चीजों का पर जो आपका जो प्रेम है वो अपने आप खप जाएगा. This is a very clear cut calculation. And ये सब गेम कहाँ पे हो रहा है? The mind is the full fulcrum or the focus where this entire, what do you say, so-called attraction and detraction towards material things is happening. So याद रखना. You got to understand this in a what do you say, in a more
explicit manner by a simple experiment. आप लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो, सुबह उठ के राग पहले किस चीज पे आ रहा है, ओ मेरा भौतिक चीजों पे राग आ रहा है, ठीक, आई एम स्टिल अवे फ्रॉम, आई एम स्टिल टू अचीव समथिंग इन डिवोशन. बट if you say that I am still in that position, what efforts are you taking to change that situation? That is more important. ठीक है, मान लिया कि आपका भगवान के प्रति प्रेम फिलहाल कम है और भौतिक चीजों के प्रति आपका प्रेम अधिक है, मान लिया. That is the default setting for everyone. भक्ति में आने के बाद भी लोगों का साथ यही रहता है. But when will it change? जब आप खुद प्रयास करोगे, when you yourself is try, yes, I should now increase my attraction and love towards God. जब आप प्रयास, जब तक आप नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, nothing is going to, because आप कितना भी कूद लो, पैदा कितना भी कर लो, हाँ, कुछ लोग जो हैं वो भक्ति को ही पूजा पाठ या विधि को ही भक्ति समझ के बैठे हैं. दिस इज मोस्ट डेंजरस. कई लोग आते हैं, प्रभु जी हम तो शिव जी का रोज पूजा करते हैं, हम साईं बाबा का पूजा करते हैं, हम इसका पूजा करते हैं, उसका पूजा करते हैं, यही हम लोग तो बहुत भक्ति मोह बड़ों के घर में तो कूट कूट के भरा है. नो, सम पीपल कम एंड टेल मी, हमारे अंदर तो भक्ति कूट कूट के भरा है, हम सुबह उठते ही नहा लेते हैं. बोला अच्छा है, दैट इज नॉट भक्ति. नास्तिक भी नहाता है, नास्तिक भी नहाता है, इसके लिए नहाने से कुछ होता है नहीं. नहा के तुरंत दिया बत्ती कर देते हैं. वेरी गुड, अच्छी बात है. अच्छा, क्यों कर रहे हो दिया बत्ती? कारण बताओ. मालूम नहीं पड़ो. दादाजी करते थे, दादी करती थी, पिताजी करते थे, माँ करती थी, मैं भी करता, और मुझे देख के मेरा बच्चा भी करता है. दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज जस्ट लाइक एन एप, वी आर फॉलोइंग थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस. उसका महत्व जाने बगैर हम लोग उस चीज को, कार्य को कर रहे हैं, यहां मामला गड़बड़ा. इसके लिए आप लोगों से हमेशा मैं एक ही निवेदन करूंगा कि हो सके उतना आप लोग भक्ति की तरफ अपना रुझान रखें, ना के पूजा पाठ. पूजा पाठ भक्ति का एक अंग है या शुरुआती दौर है. It is not the end. It is just the beginning, or you can say one of the limb of bhakti. हम लोग भी भक्ति में भी भगवान को दिया बत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, खाते हैं. No, it's not that. But that's not all in all. To develop a loving affection, attraction towards God, you need to do devotion, bhakti. But लोग अक्सर पूजा पाठ या विधि विधान में या डूज एंड डोंट्स, जिसको क्या बोलते हैं डूज एंड डोंट्स, उसी में अटके पड़े रहते. ये नहीं करना चाहिए, भगवान को नो ये चीज का भोग नहीं लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. ठीक है, डूज एंड डोंट्स में मत रहो, उसके ऊपर रीजनिंग करो, व्हाई यू शुड नॉट डू इट एंड व्हाई यू शुड डू इट, एंड बाय दैट रीजनिंग यू विल डेवलप मोर नॉलेज अबाउट गॉड, मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स गॉड. Another way of developing, or rather a parallel way of developing it, is just by listening about God. सिर्फ भगवान की लीला और गुण के बारे में सुनते ही आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है. Just by listening, बार बार. क्यों? बार बार किसी हीरो का फोटो देखते हो, हीरोइन का फोटो देखते हो, अपने आप अट्रैक्शन बढ़ता है कि नहीं? अपने आप बढ़ता है. जस्ट बिकॉज बार बार वही हीरो का या पिक्चर या हीरोइन का पिक्चर देखने से. उसी तरह है, बार बार भगवान की कहानी सुन के, बार भगवान की लीलाओं को सुन के, भगवान के गुण सुन के हमको भगवान के प्रति प्रेम और लगाव होता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि नाम, भगवान का नाम जपना चाहिए. कलयुग में वही एक क्रिया बचा है, बाकी युगों में भी था. ये मत सोचना बाकी युगों में नहीं था, बाकी युगों में भी था. और सतयुग में भगवान नाम जप भी था, साथ में क्या था? ध्यान, मेडिटेशन वाज देयर. फिर जैसे वक्त निकलते गया, एयर में पोल्यूशन बढ़ते गया, आदमी का शरीर, आयु छोटी होती आई, और फिर त्रेता युग में यज्ञ और भगवान का नाम जपा.
सेकेंडली भगवान का नाम जप उस वक्त भी करते थे, मगर फोकस ज्यादा यज्ञ पे था. क्यों? ब्राह्मण वहां क्वालिफाइड थे. The Brahmins were qualified and there was more power in their purity, and that's why they could do very nice devotional service. But when they progressed further, came Dwapar Yuga, there it came with temple worship and holy name, chanting of the holy name. You see, the common factor was chanting the holy name. भगवान का नाम जपना कॉमन फैक्टर था, बट बाकी चीजें क्या कम होती गई? जैसे जैसे व्यक्ति का शरीर या आयु क्षीण होते गया, कम होते गया, as and when the human lifespan, the human capabilities reduced gradually, similarly the other factors reduced. For example, dhyan, you require time. 60,000 years was Vishwamitra Muni's so-called tapasya, hardcore tapasya. So what do we call? Thousands of years. वाल्मीकि रामायण तो लिखा है thousands of years लिख दिया, नंबर भी नहीं लिखा. Thousands of years. So what does this mean? Thousands of years, long time span. यहाँ 60-70 साल रहने देते, बहुत लंबा ले लिया, लॉन्ग लाइफ ले लिया. घर वाले बोलते हैं 80 साल हो गया, मरता नहीं. As of 80 years, a very long span. So, as time degraded, people lost the capacity to do dhyana, to do the capacity of yajna, to do the capacity of elaborate temple worship. तो आप बचा क्या? कलयुग में कि कुछ भी करने के लिए क्षमता नहीं है, तो अब बचा क्या? कलयुग में सिर्फ you can only chant holy name in कलयुगा. इसके अलावा कलयुग में और कुछ पॉसिबल ही नहीं है. And last but not the least, always I say, in Satyug, the enemies were in 2 continents. Sorry, not 2 worlds, 2 different worlds. Hiranyakashipu, Hiranyaksha were in different world, and Lord was in a different world. We people were suffering in a different world. So Asuras in a different world, Suras in a different world. Then when Treta Yuga came, in the same world but in 2 different countries. Lanka में असुर, अयोध्या में रामचंद्र. So it was the same world but 2 different countries. In Dwapar, it came into the same family. एक भाई के बच्चे कौरव, एक भाई के बच्चे कलयुग. एक ही व्यक्ति के अंदर, इसके लिए टॉम एंड जेरी में 2 आते हैं. One with the blue ring, one with the red ring. Gods also. So, and we are very cute about it, but we like it. But actually it is we. We also got 2 things. हमारे मन में भी ये आता है कि हाँ, क्यों ना कुछ गलत कार्य करूं. झूठ बोलना तो it's like arm is very small. It's like सांस लेना. It's like taking a breath. झूठ बोलना तो इतना आसान है. So these things which are not supposed to be done by human beings, we are doing very easily in Kali Yuga. So in Kali Yuga, these are the drawbacks which you are going to face. You will not develop vairagya. You will not develop attraction towards God. You will develop attraction to those things which are of no use. I always tell, दाल चावल का कभी एडवर्टाइजमेंट आता है? नहीं आया. हमेशा किस चीज का आएगा? जो चीज आपको जरूरत नहीं है. Processed foods ads you will get. Why? You don't need it. That's bad for you. But that is what is again an emphasis. उसमें nutrition है. And what is it ad? हाँ, दूध की शक्ति बढ़ाओ. अरे हमारे राजा महाराजा से लेके हमारे पुरखों तक सब दूध पी के हष्ट पुष्ट रहे. अब उसमें केमिकल मिलाओ और उसमें क्या मिलाना है? कोको, शक्कर और उसका ताकत बढ़ाओ. कैसे बढ़ाओगे? उसके बाद भी वीगन. हाँ, वो तो that is another cult form. That is another cult. That is another cult form, and they have a different understanding altogether. It's totally different.
So now today we will ask, Arjuna will ask a question for our behalf, a very important question. So all of you will open Bhagavad Gita, 6th chapter, 36th verse. And a beautiful question, 36, no? 37, yeah. So Arjuna asks a very nice question. And can anyone read the question, please? Arjuna said, "O Krishna, what is the destination of unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desist due to worldly mindness, and thus does not attain perfection in mysticism?" Read the next verse also. O mighty arm Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a raven cloud with no position in any sphere? This question Arjuna has not asked for himself. He has asked for people in general. Now how many of you understood this question? कितने लोग ये प्रश्न को समझ पाए? You understood? समझ में आया? Jigar will explain. Yes. Arjuna is asking कि कोई बार ऐसा ना हो कि भाई इधर के भी ना रहे उधर के भी ना रहे. That's the crux of this question. Yes, but what he said is correct. Here Arjuna is asking, "Oh Krishna, what is the destination of an unsuccessful transcendentalist?" वह ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब क्या है? अब ये एक बड़ा शब्द है भाई, जो भक्ति मार्ग में अपना लिया है, एंड वो भी कैसा है? Who has taken to the process of self-realization with faith. विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति मार्ग को अपना लिया। अब but who later desist due to worldly mindfulness, मतलब भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त होके उसने भक्ति मार्ग छोड़ दिया। अच्छा, भक्ति मार्ग लेना पहला क्या है? पहला उसको छोड़ना तो बात की बात है। लेट अस नो फर्स्ट डिस्कस भक्ति मार्ग लेना किसे कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवोशन? व्हाट इज द पाथ ऑफ टेकिंग डिवोशन? कैन एनीवन एक्सप्लेन दैट? Basic, what is you call as devotional service? Okay, Shravanam, but how do you understand that? Know how great the Lord is and start serving. First and foremost, first attraction is you come to the temple. You come to any temple, not only Hare Krishna temple. Go to any temple. But you go to a temple of God and you are attracted to go again and again. Then you start attending satsang, start listening to katha, hari katha, hearing about the pastimes of the Lord, hearing the greatness about God, because everyone knows God is great, but we all don't know how great God is. And that can be known only through satsang. Through spiritual gathering only one can understand the greatness of God. So that is stage 2. And then slowly he develops a, to be very into a very vulgar language, it is live in relation with God. Yes. Why I am using this terminology? Till our work is completed. Very nice. Till हमारा काम हो रहा है ना, भैया we are good friends. I will serve you very nicely. आपको अच्छा भोगा खिलाता हूँ, आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा, और आप मेरा काम करा। मतलब as if Lord is hungry for your gifts. Because हम भगवान के स्तर तक ऊपर बढ़ नहीं सकते हैं, भगवान को नीचे अपने स्तर पर लेके आते हैं। कोई किसी को मैं बोल दूं ना, अरे प्रभु आप भक्ति कर लो, क्या बोलेगा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या, रिएक्शन क्या आएगा? क्या फायदा? क्या फायदा भक्ति करके? क्या फायदा? भैया तंबाकू, सिगरेट, दारू पी के क्या फायदा? बिना फायदे की इतनी चीजें करते हो तो बिना फायदे का एक और चीज कर लो, फायदा जरूर देगा। राइट? बिना फायदे के कितनी चीज दिन भर करते हैं हम लोग। चलो जो दारू नहीं पी रहे, नॉनवेज नहीं खा रहे, उसका भी बात कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल्डली वेस्टिंग अवर टाइम
chatting about worldly matters, meeting worldly people, and that is another problem. Even if you want to go into the spiritual path, the other family people will make sure. You don't know. पागल, ये उम्र थोड़ी है जाने की। फर्स्ट वहां से स्टार्ट होगा। ये उम्र नहीं है जाने का भक्ति में, अभी तो जिंदगी के मजे लेना है। क्या मजा लेना? 1.5 किलो खाना से ऊपर खाना नहीं खा सकते, 4 टाइम नहीं 5 टाइम खाओगे, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकते। और क्या करें? क्या मजा लोगे? घूमेंगे फिरेंगे, चलो ठीक है। बिकॉज हम यही जानते हैं कि एंजॉइंग आवर सेंसेस इज एंजॉयमेंट, विच इज नॉट ट्रू। एंजॉइंग आवर सेंसेस टू द कोर, वॉट एवर यू मे ट्राई, you cannot enjoy. So house people are the main people who are the first stumbling block in our path of devotion. मंदिर जा रहे हो, अच्छी बात है, भगवान को भोग लगा रहे हो, अच्छी बात है, बस उधर तक ही सीमित रहना। इसके आगे भक्ति करोगे तो खतरनाक है। क्यों? निकम्मा हो जाओगे। अरे पहला चीज भगवत गीता, when was it spoken? कब बोला गया था? जब, हाँ युद्ध के पहले, जब अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार। निकम्मा कौन सा पोजीशन था? अर्जुन का उस पोजीशन में था जब वो युद्ध लड़ने तैयार नहीं था। He was not ready to fight the war. He is telling, I'll get sin. It's better than begging. How can I kill my uncle, my grandfather, my teacher, everyone? But finally, when it comes to the Bhagavad Gita, after listening to the entire Bhagavad Gita, he comes to an understanding. No, I should fight. So Bhagavad Gita सीख के आदमी बेकार हुआ या काम का हुआ? Common sense. ये ज्यादा, you don't need to be a big spiritual person to understand that. भगवद गीता सीखने के पहले आदमी बेकार था। बेकार कैसे था? अरे क्षत्रिय है, योद्धा है, 13 साल तक वेट कर रहा था कब मैं बदला लूंगा, अपना इंसल्ट का बदला लूंगा। और जब इंसल्ट का बदले का मौका आया, सामने सामने पार्टी खड़ी है लड़ने के लिए, अब बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मेरे को पाप लगेगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा तो मुझे मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, अपने पिताजी को कैसे मारूं, और कितने लोग मेरे वजह से मर जाएंगे। फूल। सो दिस इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल हैव गॉट. We are not going to become useless or what do you say, inactive by listening to Bhagavad Gita. In fact, you become more active. More active in both in the spiritual as well as in the material platform. You are more focused. मुझे इतना पैसा बनाना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये अचीव करना है, और उसके बाद Bhagavad Gita doesn't give you the goal for material life. It gives the goal for a spiritual life. एंड स्पिरिचुअल लाइफ का गोल क्यों चाहिए अपने को? व्हाट इज द पर्पस? स्पिरिचुअल लाइफ का गोल का क्या मकसद क्या है? नहीं, बट व्हाई डू वी नीड दैट गोल? नहीं, अरे हम आत्मा है, शरीर नहीं है। When we come to the soul platform, then time we realize that we are the soul. एंड सोल की गति और शरीर की गति अलग है. डेस्टिनेशन ऑफ दिस बॉडी, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ दिस बॉडी? शास्त्र क्लियरली सेज क्रीमी, भस्म या वीट. या तो आपको जलाया जाएगा, या तो आपको कोई आपका शरीर को जानवर खाएंगे, या आपको दफनाया जाएगा जहां आपका शरीर सिर्फ एक कीड़ा की वजह से पूरा पाउडर हो जाएगा. या तो भस्म और तो जलाने के बाद भस्म, क्रीमी जो अगर दफनाया तो क्रीमी, या जैसे पारसी लोग डाल देते हैं ना फॉर वल्चर्स एंड ऑल. सो योर बॉडी विल बिकम अ स्टूल ऑफ एन एनिमल, जिसके लिए हम लोग इतना शैम्पू, साबुन, पेडिक्योर, मेडिक्योर, क्या क्या, एंड वी गो टू ऑल ब्यूटी पार्लर्स एंड दिस एंड दैट, बहुत मेकअप भी करते हैं. फिर भी शरीर का एंड गति क्या है? क्रीमी, भस्म या सो ये सब जानने के बाद आदमी क्या होता है? दृढ़ हो जाता है. नहीं, आप प्रभु जी आपने सही बोला, आपसे मैं भक्ति करूंगा, सीरियस भक्ति करूंगा. सुबह उठेगा, नहाएगा. आजकल वो भी बड़ा भक्त का अंग हो गया. सुबह, एक तो सुबह उठना, और फिर नहा लेगा.
और फिर नहा लेना. माय गॉड, आदमी फील सो प्योर. फिर गंगा में जाके अपना क्या, अभी कुंभ मेला में नहा के आई एम फीलिंग सो डिवाइन. सेलिब्रिटीज का आता था ना, they used to give their message ना, oh it's a different enchanting. कभी जिंदगी में सुबह उठ के नहाया नहीं देखा ना. अरे सुबह उठ के नहा लो जल्दी. That itself is an enchanting experience. ऊपर से आफ्टर ऑल दैट चलो कोई ना कोई भक्ति मार्ग ले ले. बट भक्ति मार्ग लेने के बाद द अट्रैक्शन टुवर्ड्स मटेरियल एंजॉयमेंट डजंट गो सो फास्ट. Jigar, tell me why it happens. Why this attraction for material enjoyment doesn't go? प्रभु जी, एक सिंपल एग्जांपल, जैसे किसी की चीज के ऊपर अगर स्टिकर लगाते हैं फिर उसको उखाड़ते हैं तो लाइन 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 आते रहते हैं. Because it doesn't want to. That means glue जैसा है. that means you're saying if this is applicable to everyone. If we stick to this process, everyone who comes into the spiritual path has one anchor to the material attraction, to material sense gratification, and by default everyone has to one day go there. My question is very clear. What are the causes and the reasons for one getting attracted towards that? Because it is never getting end. There is no end for material. You will have to bring an end to it. Things will never come to an end. You have to bring an end, because one day your life comes to an end. So before that, if you are intelligent, you will bring it to an end. If someone is having diabetes, but he has got too much of love towards, let's say, jalebis, it goes 1, 2, 3, 4. जिलेबी वाला तो बनाते रहे, आपका मुंह भी चलते रहे. प्रॉब्लम किधर है? You have to put a stop. You can't expect जलेबी वाला बस हो गया, वो तो बोलेगा 10 किलो खाओ, वो तो बोलेगा 10 किलो खाओ. So who has to put a stop? You. Yes. What are the main reasons why people are, though coming to the spiritual path with a degree of faith, have a strong attraction or pull towards the material enjoyment? We still have not given up. Okay, that's conditioning. Yes, what you say is true. Birth after birth, we have been only doing this. जन्मों जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं. हमारा एक ही मकसद रहा जीवन का, इस आयु, इस जीवन को कैसे सुखमय बनाए. और किसी का जीवन सुखमय हुआ अभी तक? You go and ask anybody in this world. One problem he'll be suffering with. आदि देविक, आदि भौतिक, आदि. तीनों में से एक पे सफर करते ही रहे. और कुछ भी नहीं हुआ, सम वे और द अदर, कोई तन दुखी तो कोई धन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई ना कोई दुख उसको सताते रहेगा. बट स्टिल वी आर ट्राइंग, एफर्ट we have been putting. You ask a small child, give a small child one chocolate, and there are a couple of children, 2-3 बच्चे इस बाजू में हैं, so what will the child do? Share. एक वन क्वालिटी इज, जो ईर्ष्या दिखाने वाला है वो दिखा खाएगा, दूसरा छुपा के रखेगा. छुपा के रखेगा. 90% of children will hide it and then eat it when they are alone, no one is there. That time you eat. Why? Because he has been conditioned, he has not been trained. You by default you go and ask a child, you give her a chocolate and ask another child, go and ask, देगा क्या? By default no, because भोग वृत्ति is there in our genes. It has gone in our genes. हम लोग basically we are भोगीस. वो हमारे अंदर इतना कूट के भरा है, we want to enjoy more, and उसका कोई अंत ही नहीं. जितना भी मिले, बचपन से लेके बूढ़े तक. This time my wife had gone to meet one of her relative, 80 plus, 85 plus. Okay, both uncle and auntie, very old. So went and met them.
85 plus, mind you, today at the age of 65 people can't eat. They get a cook in the house to cook for them malai kofta, biryani, fried rice, puri, wearing thick gold chains. कुछ नहीं तो सर्वेंट मर्डर करके जाएगा. No, we hear so many cases. Why? You are not strong enough to protect that, whatever you are wearing, whatever you are possessing. It's a fact. This is what the situation is. From young birth to death. Each one has his own style and way of enjoying. अपना अपना दृष्टिकोण होता है एंजॉय करने का. किसी को खाने में खा के एंजॉय करने का सुख ज्यादा रहता है, किसी को बहुत कंजूस रहता है, स्पेंड ही नहीं करेगा. बच्चा को धन देखने में उसको बड़ा आनंद हो जाता है. कोई जन बीच में नहीं हम अच्छा सोना चांदी डायमंड पहन के हम घूमेंगे, उसमें आनंद. बट भोगने की वृत्ति अलग अलग हो, तरीका अलग अलग हो, मगर वृत्ति है. एंड दिस कंडीशनिंग इज देयर फॉर सो मेनी बर्थ्स, बर्थ आफ्टर बर्थ. किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं. बच्चा बड़ा होते ही ये मेरा पैसा, ये मैंने कमाया, ये मेरा वो, सब यू विल स्टार्ट जंपिंग. सो एट दिस कंडीशनिंग, एज यू राइटली सेड, दिस इज बर्थ आफ्टर बर्थ. सो even after coming to this spiritual path, we still have that, no, it's like a smoldering fire. बोलते हैं ना, आग का एक चिंगारी हो, उसको आग पकड़ने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा हवा मारो, कोयला थोड़ा धीमा, इट गोज स्मोल्डरिंग, जस्ट फैन इट, इमीडिएटली इट कैचेस फायर. और वो हवा क्या होता है? कंड्यूसिव सिचुएशन फॉर एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन. इट मे नॉट बी ग्रॉस, इट मे बी सटल. कोई किसी को पावर, कोस्ट, एंजॉयमेंट, ये सब भी मिल गया तो भी आग बढ़ा. सो दिस इज वन रीजन. What else is the reason for people who are in the spiritual path, who have said, so few may have said no, again मुझे वापस material world में नहीं जाना है, but फिर भी उनका आकर्षण क्यों रहता है? Yes, very true. Association. आप दिन भर उन लोगों के साथ हो जो आपको बोलते हैं अरे ये सब मंदिर में जाके भगवान का नाम लगे पूजा पाठ करके कुछ होने वाला नहीं. एंड ट्रेजिकली समथिंग हैपेंस विथ यू. कोइंसिडेंटली वही टाइम पे आपके जीवन में कुछ ऐसा घट जाता है या ऐसा कुछ कार्य हो जाता है जिससे आपका, लोग अक्सर बोलते हैं प्रभु मैंने आपका इतना भक्ति किया, इतना गुणगान गाया, आपने मेरा कुछ नहीं किया. जब मेरा बुरा समय आया या मेरे साथ कुछ घटना या दुर्घटना घट गई तो आपने मुझे नहीं बचाया. Is this the right attitude towards devotion? If no, why? And if yes, why? Both options हो. ये आपको जवाब देना है. जो होता है वो थोड़ा कर्म, मैं तो अभी सरेंडर हो गया हूँ भगवान के प्रति, और भगवान ने तो प्रॉमिस किया है. Faith is not yet developed. Okay, fine. Something more? What happens for the rest. They also sometimes. If that happens, then you will not have any problem with God, no? यहाँ problem with God, no? मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, इसके लिए भगवान के बोलते हैं ना, अरे भगवान इतना माला जपा, इतना पूजा पाठ किया, और Mind is overpowering intelligence. एंजॉय कहाँ से आया? एक्सपेक्टेशन हमेशा रखते रहना और गलत है. आप एक्सपेक्ट करते रहो. Sometimes people say where is justice? एक्सपेक्टेशन Injustice towards God का justice दिखाई नहीं दे रहा. हाँ, गॉड का जैसे वही तो बोल रहा है. Why bad things happen with good people? That's a common question, no? So what is the reason for that? No. First and foremost, your surrender is still not complete. नहीं, आपका भगवान के प्रति आपका शरणागति पूरा नहीं है. अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो.
अभी भी अपने बल में ताकत, अपने आप में ताकत रखते हो, तब तक भगवान आपके ऊपर कुछ भी मदद नहीं करेंगे। द्रौपदी का भी नहीं किया जब तक उसने सारी छोड़कर भगवान को नहीं बुलाया। जब तक उसने अपना स्वयं बल लगाया, अपना स्वजन बल लगाया, अपने पतियों के प्रति आए, पास आए, वो लोग मुझे बचाएंगे, उसको पता था उसके अंदर तो ताकत नहीं। But then finally when she said no one else can save me other than Govinda, she shouted Govinda, and then Krishna came. So अब तक हमारा जो सरेंडर है, our level of surrender is still very very low, very very fragile. But here Arjuna is saying another higher point. He is saying one who has taken the transcendental path with faith. Here मैं तो जो whose faith is not fully developed की बात कर रहा हूँ, but who has developed with faith. Most of the cases it is an aparad, a Vaishnava aparad. This is the major downfall in most of the people I have seen. It's a very very dangerous thing जो मैंने इतने सालों में देखा है, और इतने सालों में इतना बार मैंने ये नोटिस किया, बट फिर भी इट इज लाइक ए ट्रैप जिसमें इट्स लाइक दैट, व्हाट इज दैट, साइबर क्राइम हो रहा है ना आजकल, सबको पता है, स्कैम स्कैम नो दैट, बैंक फ्रॉड एंड ऑल दैट, सबको पता है। फोन आजकल फोन उठाते कॉलर ट्यून वही बजता है आजकल, वही आपको इसके नाम से उसके, और मेरे को 2-3 फोन आया भी, आपका आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट बंद होने वाला है। मैं बोला आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ही नहीं है मेरा, बंद क्या करेगा, कर ले। सो दीज टाइप ऑफ are happening, we know it, but still it happens. The only reason in devotion, the only reason is because of अपराध, वैष्णव अपराध। आपने कभी भी, आप किसी साधु संत का अनादर मत करो, किसी को भी, किसी के भक्ति के ऊपर कभी हंसना मत, किसी के शारीरिक बॉडीली सिचुएशन पे कभी हंसना मत। पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, this is how first thing why people fall down from the devotional path is, and the main path I have seen this seen from ages. This is very dangerous in life. So कभी भी याद रखना, वैष्णव अपराध मत करो। नहीं जम रहा है निकल जाओ, नहीं जम रहा है निकल जाओ। This is what is called मति पे मदमस्त हाथी हो जाता है ना, वैसा हाथी मदमस्त हो जाता है, and that blast you totally out, मतलब जो भी आपने किया वो सब सत्यानाश। So this is how you develop, that person develops more attraction towards material, because he faces a setback, he or she faces a setback in devotional life, and then my material life is 1000 times better, my material people, मतलब भौतिक दुनिया के लोग अच्छे हैं, मैं उधर ही वापस जाऊं। That is how people get attracted. So first and foremost is Vaishnava. What else is there? What else do you think is possible for one to get deviated from devotion? Desires, तो वो तो हम पैदा होते ही हमारे अंदर desires होते हैं। After coming into Krishna consciousness, if one desires, he is a fool. He is a fool. No. The biggest problem is your attachment to your children, to your wife, to your husband, to your household people. That is also another reason why people fall down from the devotional path. They fall down to a place where you feel the material world is much beautiful and much nice from where I have come. कि हम लोग सब एक दुनिया से आए, इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, कोई भौतिक दुनिया से ही आए हैं, और यहाँ आने के बाद इनिशियली इट्स लाइक लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट द फर्स्ट फाइट। कुछ भी गड़बड़ हो गया तो डाइवोर्स एट द फर्स्ट फाइट। दिस इज हाउ वन शुड अंडरस्टैंड कि भाई भौतिक चीजों का जो प्रेम है। बट अर्जुन एक सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, समझो एक व्यक्ति भक्ति में अग्रसर है, काफी भक्ति किया, और
भक्ति मार्ग छोड़ के गया। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से सीनियर है। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से सीनियर, एक यहाँ बैठा है। They were doing devotion, so called whatever devotion it was, they were doing when they were in college days. I was enjoying my science in my college days, but they were doing devotion. एक टांग डिवोशन में, एक टांग भौतिक दुनिया में कर रहे थे। क्या हुआ? कुछ साल बाद छूट के भौतिक दुनिया में मस्त चले गए। Another is राजेश गोपी, today is initiated devotee, okay? वो भी भक्ति में आया, फिर माँ बाप ने बोला नहीं तेरा शादी नहीं होगा, तो ब्रह्मचारी बन जाएगा। तो डरा के घर पे पकड़ के रखा होता। अरे बाबा, जो जीव भक्ति करना है वो करेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो भक्ति मार्ग में जाएगा। थैंक यू। वो भक्ति मार्ग में जाएगा, मगर कितना भी जाओ, ये लोग 10 साल, कितना 10-15 ईयर्स 15 ईयर्स बाद ब्रेक 15 ईयर्स का ब्रेक, भक्ति में 15 ईयर्स का ब्रेक लिया, बट बैड लक में आ गया जीवन में। एंड दे आर बैक इन डिवोशन। Other fellow got initiated also, now is doing very nice. His wife has also taken up devotion so seriously. What I am trying to say, people senior than me can also get deviated, but then Lord is such. एक बार भगवान के प्रति आपका प्रेम बन गया, भगवान आपको नहीं छोड़ेगा, कितना भी करो। आप मन घर पे बैठे बोलो मैं आज हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा, तो बोल दिया है ना, कुछ भी हो जाए मैं हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा। So by saying negative also you have no option, you cannot leave God. अब भगवान को छोड़ के नहीं जा सकते। So now he asked another question. Part 2 of the question is more important. He is saying who no, the next one. Oh mighty armed Krishna, does not such a person who is bewildered from the path of ट्रांसेंडेंस कंफ्यूज्ड, कहीं मैं तो नुकसान में तो नहीं आए, दारू छोड़ा, नॉनवेज छोड़ा, गंदी आदतें छोड़ी, ये सब छोड़ के मैं आया भक्ति करने। पहले कितना सुखी था, दोस्त लोगों के साथ घूमता था, सैटरडे नाइट दारू पीता था, संडे मॉर्निंग चिकन खाता था, नॉनवेज खाता था, फिर शाम को गंदे लोगों के साथ घूमता था, बीड़ी सिगरेट चरस गांजा सब पीता था, कितना सुखी था। अब क्या है, सत्संग मिलता है, कथा मिलती है, आनंद है इसमें, मगर आई थिंक दैट वाज मच बेटर, आई शुड एंजॉय दैट। जब वो सिचुएशन आती है, ही विल फॉल फ्रॉम बोथ मेटीरियल एज वेल एज फ्रॉम ट्रांसेंडेंस, उसको बड़ा प्रॉब्लम उसमें। अब मेटीरियलिस्टिकली ऑल्सो, अब जो दोस्तों को बोल दिया अरे नहीं आप में तुम लोग के साथ दारू नहीं पीता, अब वापस जाके उसके साथ बैठ के दारू कैसे पी? देयर इज अ बिगर चैलेंज फॉर इट। आप जिन दोस्तों के पास जाके बोले कि नहीं भाई मैं गंदे चीज छोड़ दिया, तुम लोग गंदे करो, मैं नहीं करूंगा, अब वापस जाके, तो यहां व्हाई इज बिविल्डर्ड, ये सुख भी गया, ये सुख तो गया, दारू नॉनवेज ये सब सुख गया। भक्ति में मेरे को मेरा पोस्ट मिलेगा कि नहीं गारंटी है, अगर बैक टू गॉडहेड नहीं गया, भगवान के पास नहीं गया, भगवत धाम में नहीं गया और यहीं में अटक गया, तो मैं क्या करूंगा? कंफ्यूजन ना, बिग कंफ्यूजन, मतलब लॉस सिचुएशन। ना ढंग से मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय किया, ना ढंग से स्पिरिचुअल वर्ल्ड अटेंड किया, एंड दिस आर द थिंग्स बिकॉज ऑफ धाम अपराध, वैष्णव अपराध और सेवा अपराध। इन अपराधों की वजह से आपके जीवन में कभी ना कभी ये एक प्रश्न उठेगा, जरूर उठेगा, और नहीं उठा तो समझ लो आप भक्ति नहीं कर रहे हो। हाँ, दिस क्वेश्चन हैज टू कम, बिकॉज एक तो हमारा प्रारब्ध, इतने जन्मों जन्मों का प्रारब्ध है। सो दीज अपराध कहीं ना कहीं जाके आपको भक्ति में एक बार सोचने में विवश कर देगा कि क्यों ना वापस अपने भौतिक दुनिया ही अच्छा है, अपने दोस्त ही अच्छे हैं, अपने रमने जो चीज में रमे हुए हैं वही अच्छा है, ये सोच के आपको मन में आएगा, और बाकी
घर वाले रिश्तेदार भी बैठे हैं आपको खींचने के लिए, तो गलत जगह पे फंस रहा है, ये उम्र नहीं है तेरी जाने की, ये अभी तो जीवन के मजे लेने हैं एंड ऑल दैट स्टफ. दे विल से दिस इज अ सिचुएशन वेयर कृष्णा, अर्जुन इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू कृष्णा, बोल अब क्या करना है, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन यू वांट टू बी इनटू, डू यू वांट टू, व्हाट विल बी द सिचुएशन. उसका तो लूज लूज सिचुएशन है. आयु निकल गई, पूरा जीवन उसने आधा 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 अधूरा भक्ति किया और ना भौतिक एंजॉयमेंट हुआ, ना मटेरियल में कुछ स्पिरिचुअल फायदा हुआ, ना मटेरियल फायदा हुआ. व्हाट इज इट इज for him, he feels at that situation, he feels this is a feeling, this is not the fact, it is a feeling that I have lost both materially as well as spiritually. मेरा वो भी अब पोजीशन पे मैं जीत नहीं पाया, ये पोजीशन भी जीत नहीं पाया. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस हैव वन थिंग, इफ यू आर हैविंग फेथ, हैव फेथ टिल द लास्ट मिनट. यू नो व्हेन यू वॉच द क्रिकेट मैच, मालूम है बट टिल द लास्ट बॉल यू आर if you have done, because Lord gives this promise in Ramayana, in Mahabharata, in both the cases he says, you know, in Ramayana there is a prasang where Sita Maiya tells Rama first goes to Dandakarnya and all the sages come and fall at his feet, please save us, हम लोग एक राक्षस इतने परेशान करके बैठे हैं, हमको खा रहे हैं, नो हड्डियों का एक पहाड़ बन गया है, इतने साधुओं को खा गया. तो रामचंद्र जी बोलते डोंट वरी, आई विल किल ऑल दिस. तो सीता मैया वांट्स टू चेक क्या ये सही में सही बोल रहा है या गलत, मतलब बोलते ना टेस्ट होता है ना कभी कभी. तो वाइफ वांट्स टू टेस्ट द हस्बैंड्स मेंटालिटी, सो शी आस्क्ड, एक्चुअली ना इज नॉट योर जॉब, ये राजा का जॉब है. अब तुम कहां पे हो, वनवास में, यू आर इन द फॉरेस्ट, यू आर इन एक्साइल, सो यू डू योर जॉब. एक्साइल वक्त काटो, बाद में राजा बनो, तुम्हें मारो, नो प्रॉब्लम, बट यू आर नॉट द किंग now, so you have no right to do that. And secondly, you know, all these things are happening because of association. You are always carrying that bow. कोई भी फोटो देखो, भगवान कभी bow छोड़ते हैं, पर उसके पीछे भी राज है, उसके पीछे भी राज है. आचार्य कहते हैं वो bow इसके लिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि अगर समझो उन्होंने bow छोड़ दिया और किसी भक्त को कोई तकलीफ हुई, he doesn't want to waste that much of time, वहां जाए, bow उठाए, right? Like the machine gun is always loaded. He just has to take the bow, so finish. So that's why Lord always carries the bow. So he tells, see, that time a very nice shloka comes, very powerful shloka. He says, once I may leave my life, but I will never leave my wife. I may leave my wife, but I will never leave my brother Lakshmana. Well, I will protect my brother Lakshmana. But I may leave my brother also if for a case of saving a. Bhagwan ने ये कहा है, and Bhagwan is saying in Mahabharata also, in Ramayana also, in Bhagavad Gita is saying, Ma suchaha, please do not worry, I will protect. एक faith रखो, एक नो, अगर समझो, है ना, आजकल का पिक्चरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल का पिक्चर को सिर पैर नहीं होता, ऐसा मैं सुना है, मैं देखा नहीं, बट यू नो ओल्ड मूवीज, यू नो 2.5 घंटा हीरो पिटता था, लास्ट में 15 मिनट में ना वो विलेन को पीटता था. फर्स्ट 2.5 hours एकदम ट्रेजेडी, मार पे मार, एंड यू नो all wrong things are happening with him. Nothing goes his way, everything goes his way, and in the end हम लोग का जीवन भी ऐसे ही, ये हम लोग का 2 घंटा हुआ है या 2.5 घंटा हुआ पता नहीं ना, 1 घंटा. माता जी हमेशा बोलते प्रभु जी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, डोंट वरी यार, इन द 2.5 hours में हो रहा है, आधा घंटा बाकी है आपका, लास्ट जो आधा घंटा है उसमें आपका प्रॉब्लम्स. ये 2.5 घंटे का जो सबर नहीं होता, वी आर नॉट एबल टू हैव द कन्विक्शन एंड वेट, दैट पेशेंस वी शुड हैव, हाँ ये 2.5 घंटा निकल जाएगा.
ये 2.5 घंटे का जो भी तकलीफ उठा रहे हो ना, वो भी भगवान की कृपा से नहीं है, आपकी कृपा से है। यू हैव अर्न्ड दोस कर्मास। आपने बहुत मेहनत से आपने पाप की। पाप करना बहुत मेहनत का काम है, पुण्य करना इजी काम। हाँ, पुण्य करना बोला तो मंदिर जाना, सत्संग सुनना, प्रसाद खाना, डबल खाओ, नो प्रॉब्लम। नो, पुण्य इज वेरी इजी, पाप वेरी कॉस्टली। दारू पीना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, लिवर बिगाड़ना पड़ेगा, सिगरेट पीना पड़ेगा, फेफड़े बिगाड़ने पड़ेगा, नॉनवेज एक आध जो जानवर को हत्या करना पड़ेगा, फिर आपका पेट भरेगा उससे। सो जुआ खेलना है तो भी आपको, और 90% जुआ में गोइंग टू हेल्प या पाप करना इज कॉस्टली जॉब, और पुण्य करना सस्ता है। और क्या है, हम लोग को आदत क्या है ना, हमको सस्ते चीज नहीं चाहिए। सीधी बात है ना, अगर आपके पास 10 रुपए का चॉकलेट आवे और 20 रुपए, आप कौन सा लोगे? 20 रुपए वाला, महंगा वाला लेंगे ना। हम सस्ता वाला तो लेते नहीं है, तो हम लोग भी इसके लिए पाप कर्म में ज्यादा लिप्त हैं। क्यों? महंगा है, वो 3 क्लास, वो महंगा है। मैं महंगा चीज खाऊंगा ना, क्यों सस्ता वाला खाऊंगा? हाँ, आजकल हम लोग बर्गर खाते हैं, बड़ा पाव नहीं खाते। क्यों? 40 रुपए का बर्गर है, 20 रुपए का बड़ा पाव। यस ब्रो। यंगस्टर में बहुत लोगों में न्यू ट्रेंड है, हाँ, संसार छोड़ के बाबा बनने का। और बाबा बनने नो के लिए नो ट्रेंड ही नहीं है। जीवन में बाबा बनने के लिए ध्यान अवस्था में इमीडिएट जाना है, तो लोग गांजा चरस का शुरू कर दिया है। Yeah, that's not called devotion. That is just called as pseudoism. And 99% I'll tell you, to become a Baba is not devotion. जितने भी आप आचार्य देखो तो गृहस्थ थे, घर छोड़ के कोई नहीं गए, संसारी गृहस्थ थे। आपका नरसिंह मेहता जी, मीराबाई, कोई भी देखो आप, नामदेव, एकनाथ, सब गृहस्थ थे, कोई सन्यास छोड़ के नहीं गए। मैं इन इस कल्ट में मैं जनरल बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ वेरी वेरी बेसिक। Everyone was saying, even Ramanacharya was grahastha, you know that. What to talk about Prabhupada, वो तो modern days के हैं। I am talking of Ramanacharya, and हमारे आचार्य तो सब तो गृहस्थ थे ही। भक्ति विनोद ठाकुर had 2 marriages. So what do we understand from this? You don't need to become a sadhu to achieve God. You need to put your mind and heart on God, and God is in your lap. God is in your lap. Very easy to get God. Actually to achieve God is very easy. But we have made it difficult because हमारे बीच में एक बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है इंद्रिय तृप्ति का एक बड़ा भूत को बीच में खड़ा करके हम लोग लड़ रहे हैं। सब जगह देखने वाले नामदेव सब जगह भगवान को देख पाते थे। क्यों? भूत में भी लंबकना, भूत में भी उन्होंने भगवान को देखा। एक बार उनका कुटिया जलने लगा, आग लग गया, आए बाहर आए, जो भी कुछ वो थोड़ा बहुत सामान था वो भी उठा के आग में डाल दिया। क्यों? बोले भगवान अग्नि के, फायर के स्वरूप में आए और उनको भोग लगा है, भूख लगा है, खा रहे, खाओ सब। जो भी जो इफ वी वर देयर इन हिज प्लेस व्हाट वी वुड डू? अरे जो बचा सके बचा लो, हाँ, जो बचा सके बचा लो। एक तो उस जमाने का ओल्ड हटमेंट नो, घास फूस का जल रहा है, उठा उठा के डाल। फिर अगला दिन बाहर घर के आंगन के बाहर बैठा है, रामकृष्ण हरि कर रहे हैं। तो भगवान ने देखा ये कुछ चेष्टा तो करेगा नहीं, जो भी करना है मुझे ही करना है। गए अगले दिन भगवान आए, हाँ मैं कारीगर हूँ, घर बनाता हूँ, आपका घर जल गया, आपको बना दूँ? हाँ बना, नो प्रॉब्लम। पैसे लगे? वो तो नहीं है मेरे पास, कुछ तो लगेगा ना, कुछ तो देना पड़ेगा। देख भाई, मैं पूरा दिन कीर्तन भजन करता हूँ, इफ यू वांट आई कैन डू सम कीर्तन एंड भजन फॉर यू। भगवान भी अभी क्या करेगा, कुछ है ही नहीं इसके पास तो क्या लेंगे। ठीक, रोज शाम को आप मेरे को थोड़ा देर कीर्तन सुना देना, एंड आई विल वर्क फॉर यू। एंड डेफिनेटली गॉड व्हेन केम अलोन, लक्ष्मी जी फेल्ट, मेरे पति को कोई मदद, क्या है, ऊपर छड़ा है, छज्जा बना रहा है, बांध रहा है, रस्सी का गोला गिर गया,
हे रामदेव वो निकाल के दे, मैं अपना कीर्तन करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, तेरा काम है तू करना कर। मैं अरे ही कुड नॉट टेल आई एम गॉड, बेचारा परेशान। तो लक्ष्मी जी शी केम डाउन, तो मैं आके मदद कर, तो शी केम एंड शी यूज्ड टू हेल्प गॉड एंड दोनों का मदद करते एंड देन शाम को एक नामदेव जी कीर्तन सुनाते एंड वेरी क्विकली गॉड मेड, गॉड के लिए कौन सी बड़ी बात, within 2 days he made a very beautiful house. तो all the villagers were like envious, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी, मतलब that is the attitude ना, human attitude वही है ना कि भाई वो मेरे से सुखी कैसे हो सकता है। इसी चक्कर में सब लोग भाग रहे हैं। आप एक हफ्ता आप मॉल जाओ तो वो टाइम पे कोई और कहीं और गया रहेगा, थिएटर में गया रहेगा, और नेक्स्ट वीक वाइस वर्सा। हाँ, ये थिएटर में जाएगा, वो मॉल में जाएगा, ये दोनों गए, तीसरा गएगा अपना क्या होटल में खाना खाने, फिर चौथा हफ्ता क्रॉस, यही चल रहा है पूरा मंथ यही चलता है। तो फाइनली सब घर बाजू वाले आए, बोले इतना अच्छा घर कैसे बनाया, बोला आया था एक आदमी आया था, उसकी पत्नी भी आई थी, उन्होंने किया। अच्छा क्या कितना रेट लेता है, नहीं थोड़ा महंगा है। क्या महंगा मतलब, हाँ थोड़ा महंगा है, ये वो उसका महंगा है नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आके आपको बहुत अच्छा करके देगा, मगर ओनली थिंग है पहले इसके लिए ये ऐसे घर बनाने के लिए आपको अपना घर जलाना पड़ेगा। क्या बोला, आपको आपका घर जलाना पड़ेगा, फिर जाके वो हकी करते, नहीं तो नहीं करते। उन्होंने नहीं रहने तो, हम लोग हमारा घर अच्छा है, हम लोग वैसे रखते हैं, हम नहीं जलाएंगे हमारा घर। सो व्हाट डज दिस मीन, one should have faith, that conviction, yes God will take me out of problem. जला रहे पूरे जला रहे, जो बचा वो भी डाल दो, no problem. So that conviction and faith, and mind you, Acharya say, when good times have not survived, bad times also will not survive. That's for sure. Okay, with this I close today's session. Anybody has got any doubts, questions, can ask.